اور نیوز مومنٹ اردو سے آپ کا استقبال کرتی ہوں نیوز مومنٹ اردو میں۔ آج کی خبروں کی سرخیاں درج ذیل ہیں۔ سمک بھٹاچاریہ راجیہ سبھا ایم پی آسنسول میں دھکا ریلوے کراسنگ پر واقع دیباسیس بھون کے احاطے میں یوتھ فار یونٹی آرگنائزیشن کے زیر اہتمام میٹنگ سے خطاب کیا۔ پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے محکمہ جنگلات کا اقدام۔ ہفتہ کو آسنسول گرلز کالج میں گورننگ باڈی کی ایک اہم میٹنگ کا انعقاد۔ راجوری کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر راج کمار تھاپا سمیت 5 افراد پاکستانی گولہ باری میں ہلاک۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. ڈبل بی اے آنرس، بی سی اے آنرس، بی ایس سی بائیو ٹیکنالوجی آنرس، ڈی ایچ ایم آٹونومس ریسرچ انسٹی ٹیوشن، قاضی نذرال یونیورسٹی مغربی بنگال اور اے آئی سی ٹی ای منظور شدہ کالج سے وابستہ۔ داخلہ جاری۔ www.research.ac.in داخلہ جاری ہے۔ داخلہ کے لیے کال کریں۔ ہمارا نمبر ہے 8509276747 9339316820 8389866920۔ نئے کیمپس کی نئی شروعات۔ سیشن 2025-26 کی کلاسز ہمارے بالکل نئے کیمپس پر شروع ہوتی ہے جو ایک دلچسپ سفر کے لیے تیار ہیں۔ ایسٹرن ریلوے آسنسول ڈویژن نے ایک پیڑ ماں کے نام تھیم کے تحت بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم کا اہتمام کیا۔ ماحولیاتی استحکام اور سرسبز مستقبل کے لیے اپنی وابستگی کے ایک حصے کے طور پر مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن نے آج ڈویژنل ریلوے مینیجر کے دفتر کے احاطے میں ایک پیڑ ماں کے نام کے موضوع کے تحت بڑے پیمانے پر شجرکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ آسنسول ڈویژن مشرقی ریلوے کے ڈویژنل ریلوے مینیجر شری چیتنانند سنگھ نے ڈویژن کے برانچ افسران اور عملے کے ساتھ پودے لگا کر شجرکاری مہم کی قیادت کی۔ یہ اقدام مادریت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ماحول کے تحفظ کے اجتماعی عزم کی علامت ہے۔ درخت لگانا ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کا کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں، آکسیجن فراہم کرتے ہیں، مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، حیاتیاتی تنوع کو سہارا دیتے ہیں اور درجہ حرارت کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ خاص طور پر شہری اور صنعتی علاقوں میں اہم اس طرح کی کوششیں ہندوستانی ریلوے کے گرین مشن کے لیے لازمی ہیں۔ تھیم ایک پیڑ ماں کے نام نے تقریب میں جذباتی گونج کا اضافہ کیا، لوگوں کو اپنی ماؤں کے اعزاز میں ایک درخت لگانے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شری چیتنانند سنگھ نے ریلوے آپریشنز میں پائیداری کی اہمیت پر زور دیا اور مسلسل ماحولیاتی بیداری کی ضرورت کو اجاگر کی۔ انہوں نے عملے کی فعال شرکت کی تعریف کی اور ایسے بامعنی اقدامات کے ذریعے ارد گرد کو سرسبز بنانے کے لیے ڈویژن کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایسٹرن ریلوے کا آسنسول ڈویژن ماحول دوست طریقوں کو اپنانے اور ایک صحت مند سیارے میں حصہ ڈالنے کے لیے فعال اقدامات کرتا رہتا ہے۔
IIT खड़गपुर खुदकुशी केस में दर्ज की जाएगी FIR। IIT खड़गपुर ने सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे साल के तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ कमर की मस्तबा मौत के मामले में FIR दर्ज करने का फैसला मई को हॉस्टल के कमरे में तालिब इल्म की लाश मिलने के बाद अदारे ने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को मुत्तला किया था, लेकिन अब बाकायदा इंक्वायरी दर्ज कर ली गई है। IIT खड़गपुर के कायम मुकाम डायरेक्टर अमित पात्रा ने कहा कि पहले ज़बानी और तहरीरी इत्तला पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब कानूनी अमल के मुताबिक FIR दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा किसी भी गैर फितरी वाक़े के बाद पुलिस को इत्तला दी। मई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले और 6 है ये कदम राजस्थान के कोटा में NEET के उम्मीदवार की खुदकुशी के मामले पर अज खुद नोटिस लेने के बाद उठाया गया है। अदालत ने खुसूसी तौर पर पूछा था कि क्या कमर की मौत के बाद FIR दर्ज की गई थी। दरअसल अदारे ने हालिया खुदकुशियों की तहकीकात और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए तजवीज़ देने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का अमल शुरू कर दिया है। जनवरी से अब तक IIT खड़गपुर में 3 तालिब इल्मों ने खुदकुशी कर ली है, जिसकी वजह से अदारे पर सवालात खड़े हो रहे हैं। कमरे में लटकती हुई लाश मिली, मदन पीटी हो गए। कमर की लाश मोहन मालविया हॉल ऑफ रेजिडेंस। ये वाक़या चौथे साल के तालिब इल्म अलिकेत वालकर की मौत के सिर्फ 2 हफ्ते बाद पेश आया, जो शोबा ओशियन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर में पढ़ता था। इससे कबल जनवरी को तीसरे साल के तालिब इल्म शान मलिक की लाश 2024 में भी उनके हॉस्टल के कमरे से मिली थी। बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की तलबा देविका पल्लई ने भी खुदकुशी कर ली। समीक भट्टाचार्य राज्यसभा MP आसनसोल में धक्का रेलवे क्रॉसिंग पर वाक़े देवाशीष भवन के अहाते में यूथ फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मीटिंग से खिताब किया। आइए कृष्णेंदु मुखर्जी और समीक भट्टाचार्य जैसे लीडरों को सुनते हैं। 29 বছর বয়সে যেভাবে আমেরিকায় গিয়ে অখ্যাত একজন সন্ন্যাসী পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে রিপ্রেজেন্টেশন করেছিলেন, ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের প্রতি সারা পৃথিবীকে হিন্দু ধর্মের বাণী শুনিয়েছিলেন। তার তখন বয়স ছিল 29 বছর বয়স। আমরা দেখেছি গৌতম বুদ্ধ, তার বয়স সে যখন একটা জায়গায় পৌঁছেছিলেন তার বয়স ছিল 30 বছর। আমরা দেখেছি ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই মাত্র 23 বছর বয়সে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। আমরা দেখেছি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার 21 বছর বয়সে তারা ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছেন। আমরা এরকম অসংখ্য মানুষজন জানি, যখন দেশের প্রয়োজন হয়েছে, যুবকের ইউথের যখন দরকার পড়েছে, ইউথ স্টারদের যখন দরকার পড়েছে, ভারতবর্ষের প্রচুর এইরকম ইয়াং স্টার, ইউথ স্টার, যুব শক্তি এগিয়ে এসে নেতৃত্ব প্রদান করেছে। এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ চলছে। আজ দরকার আমাদের ভারতবর্ষে যে সঠিক যুব সমাজকে তুলে নিয়ে আসা, সঠিক যুব সমাজকে সঠিক দিশা দেখানো এবং তাদেরকে দিয়ে আগামী দিনের ভারতবর্ষ যাতে 1 নম্বর জায়গায় যায় সেই রাস্তাটাকে আরো প্রশস্ত করা। আমি চাইবো, আমার সামনে রয়েছেন শ্রমিকদা, আপনারা বসে রয়েছেন, যুব সমাজকে আলো দেখাবার কথা আরো অনেক ভালো করে উনি দৃষ্টি মার্গদর্শন করবেন। আপনারা সবাই বসে শ্রমিকদার কথা শুনুন। আগামী দিন এই যুব সমাজ, ভারতবর্ষের যুব সমাজ সারা পৃথিবীকে আলো দেখাবে, এই আশা রাখি। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। বন্দে মাতরম। আমাদের কাছে ঘটনাক্রমে প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আগে এই অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনারা যদি কেউ মনে করে থাকেন কোন এক জাদুকাঠি স্পর্শে এই যোগ্য অযোগ্যের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা যাবে না,
যোগ্য কারা অযোগ্য কারা এসএসসি দুর্নীতিতে কারা আছে এর মীমাংসা সুপ্রিম কোর্ট করতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে আমরা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিলাম, কিন্তু যাদের মাইনে একদম রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্টে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল, সুপ্রিম কোর্ট এতটা মানবিক মুখ নিয়ে দাঁড়ায়নি। তারা বলেছিলেন টাকা ফেরত দিতে হবে না, কিন্তু তোমরা তাকে চলে যাও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন প্রত্যেকে স্কুলে যাও, প্রত্যেকে স্কুলে গিয়ে পড়াও। সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা তৈরি হয়নি, গোটা সাংবিধানিক পরিকাঠামোটাই ভেঙে পড়ে গেছে। আমরা আজকে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা বলছি, আমরা এআই এর কথা বলছি, আমরা আশ্চর্যভাবে চেয়ে দেখলাম যে হার্ড ডিস্কে আজকে ফরিদাবাদ থেকে রিকভার করলো সিবিআই। সেই হার্ড ডিস্কে বহু জায়গায় নাম্বারের পাশে শূন্য বসানো আছে, কিন্তু তারপরেও তারা চাকরি পেয়েছে। প্রত্যেক এমএলএ 70টা করে কোটা, 70 জন করে চাকরি বিক্রি করবে। শুধু স্কুলের চাকরি নয়, মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিস কমিশন, এক জেলার লোককে অন্য জেলায় চাকরি দেওয়া হচ্ছে যাতে চিনতে না পারে। বিধাননগর এর পাশে সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, সেখানে চাকরি দেওয়া হলো নদিয়ার লোকজনকে, আর সেই চাকরি দেওয়ার জন্য বিধাননগরের একটি সরকারি স্কুল থেকে ट्रैक के मसाइल को हल करके ट्रेन के सफ़र को महफूज और तेज़ तर बनाना। आसनसोल हिंदुस्तानी रेलवेज़ रेल की पटरियों में इन मसाइल को हल करके ट्रेन के सफ़र को महफूज और ज़्यादा काबिल आत्माद बनाने के लिए अहम इक़दामात कर रही है, जो ट्रेनों की रफ्तार को कम कर सकते हैं या पटरी से उतर सकते हैं। ये मसाइल जिन्हें जबरी तरतीब कहा जाता है, ट्रैक के गैर रिवायती इंतज़ामात हैं जो मिसाली नहीं हैं और ताख़ीज़ देखभाल में इजाफ़ा और हिफाजती ख़तरात का सबब बन सकते हैं। इससे निपटने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे मुनहनी खतूत को सीधा करके जंक्शन को ज़्यादा मुनासिब जगहों पर मुंतकिल करके और पटरियों पर ट्रेन के बोझ की बेहतर तकसीम को यकीनी बनाकर ट्रैक की तरतीब को बेहतर बना रहा है। ये इक़दामात पटरियों पर दबाव को कम करेंगे, देखभाल की ज़रूरियात को कम करेंगे और ट्रेनों को ज़्यादा आसानी से और शेड्यूल के मुताबिक चलाने में मदद करेंगे। हिंदुस्तानी रेलवे अपनी सफ़र पटरी से उतरने की पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर न सिर्फ मेन लाइनों पर बल्कि यार्ड लाइनों पर भी तवज्जो दे रहा है। ये इक़दाम हिफाजत, बेहतर सर्विस और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तई हिंदुस्तानी रेलवे के मजबूत अज़म की अक्कासी करता है। होशियार ट्रैक डिज़ाइन को लागू करके तंजीम मुस्तकबल के लिए ज़्यादा लचकदार और महफूज रेल नेटवर्क बना रही है। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में ट्रैक की इन तब्दीलियों के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाती है। 2023-24 में इस तरह के 2 इस्लाहात रेलवे यार्ड्स में और वो जंक्शन पॉइंट्स पर की गई थी, पांडेश्वर और भीमगढ़। मौजूदा साल 2024-25 में मुख्तलिफ यार्ड्स में इसी तरह के 4 अपग्रेड मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें 10 पॉइंट और क्रॉसिंग एरियाज शामिल हैं। इन जगहों में अंडाल जंक्शन, कुल्टी, ECL यार्ड अंडाल और खाली यार्ड अंडाल शामिल है। मुसाफिरों की हिफाजत और बला तातिल ट्रेन खिदमात को यकीनी बनाने के लिए तमाम काम एहतियात से अंजाम दिया गया है। दुर्गापुर में घरेलू खातून की पुरअसरार मौत को लेकर कशीदगी तोड़फोड़।
पवन शर्मा की रिपोर्टों के मुताबिक घरेलू खातून पुरअसरार मौत, कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज किया। आइए तोड़ फोड़ करें न्यू टाउनशिप थाने की हुदूद में शदीद कशीदगी। न्यू टाउनशिप पुलिस और कम्बैट फोर्स जाए वक़ुआ पर मतवफ़ा घरेलू खातून का नाम माया घोष है। पुलिस ने शौहर, ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ कि परवाही इलाका के शशुद्दीन मेई की शादी 2 साल कबल दुर्गापुर थाना के कमालपुर की माया घोष से हुई थी। माया घोष के वालिद के घर के लोगों ने शिकायत की कि उनके शौहर, शशुद्दीन और ससुर सास शादी के बाद ही माया के साथ बदसलूकी कर रहे थे। खबर है कि माया की मौत हो गई है। जब वो माया के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने माया की लटकती लाश देखी, फिर उसे गुस्सा आ गया। तोड़ फोड़ की जाती है। थाना न्यू टाउनशिप की भारी नफरी सूरत हाल को संभालने के लिए पहुंच गई। पुलिस के गिर्द एहतजाज शुरू हो गया। परिंदों की प्यास बुझाने के लिए महकमा जंगलात का इक़दाम। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक झालदा जंगल के इलाके में रेंज ऑफिस से लेकर बेट ऑफिस और नर्सरी तक पानी से भरे मिट्टी के बर्तनों को दरख्तों पर बांध दिया गया है, जहां परिंदे आते हैं। जंगलात के कारकुनान सुबह और दोपहर को पानी से भर रहे हैं। नामालूम परिंदों का एक झुंड पानी में अपने चेहरे डुबोकर सुकून तलाश करके कहीं हिजरत कर रहे हैं। झलदा रेंज और इस रेंज के खेतों और कलमा बेट ऑफिस में भी ऐसा ही मंजर देखा गया, जहां कारकुन मिट्टी के बर्तनों में पानी डालते हुए देखे गए। झलदा महकमा जंगल के रेंजर अपूर दामू बंती ने बताया कि परिंदे आने वाली जगहों पर दरख्तों पर पानी के कैंटर्स लगाए गए हैं, जिनमें रेंज ऑफिस, बेट ऑफिस, नर्सरी, वीडियो एरिया के कुछ स्कूलों और स्कूलों के बच्चे भी आते हैं। ऐसे मकामात की निशानदेही की गई है। हफ्ता को आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में गवर्निंग बॉडी की एक अहम मीटिंग का इनेकाद। वसीम खान की इत्तलाआत के मुताबिक मगरबी बंगाल हुकूमत के वजीर कानून श्री मुलाय घटक, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका शाह और बहुत सारे मुमताज़ नुमाइंदे अजलास में मौजूद थे। कोर्सेज और तलबा की मजमूई तरक्की। मोनिका शाह ने कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने की मुसलसल कोशिश कर रही है कि तालबात न सिर्फ मायारी तालीम हासिल करें, बल्कि उन्हें जदीद लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास रूम्स जैसी सहूलियात भी मुयस्सर हों। कॉलेज में डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, एक्टिव क्लास रूम्स और ख्वातीन के हॉस्टल की तज़ईन व आराइश की भी तजवीज़ है। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि तालबात के लिए नफ्सियाती काउंसलिंग, खेलों की सहूलत और इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी वुसअत दी जाएगी। आसनसोल के वार्ड नंबर 39 में 2 ग्रुपों के दरमियान तशादम की वजह से कशीदगी का माहौल। मुकामी लोगों और पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कल रात एक शादी की तकरीब में बच्चों के दरमियान लड़ाई की वजह से झगड़ा शुरू हुआ। हालांकि इस वक्त मामला पुरसकून था, लेकिन बाद में एक फरीक ने दूसरे फरीक पर उनके घरों पर ईंट और पत्थर फेंकने का इल्ज़ाम लगाया। मुकामी रहायशी हकीम दास का कहना है कि कुछ लोगों को लाठियों और तेज़धार हथियारों से मार पीटा गया और कुछ
मोटर साइकिलों की तोड़ फोड़ भी की गई। वाक़या की इत्तला मिलते ही आसनसोल साउथ थाने की पुलिस मौका पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हकीम दास ने बताया कि इस वाक़या के ताल्लुक से आसनसोल जनूबी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हमला आवर समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस थे। श्रीनगर में सुबह के धमाके के चंद घंटे बाद एक और धमाका। श्रीनगर को हफ्ते के अवाइल में इसी तरह के धमाकों के बड़े पैमाने पर धमाकों से लर्जा उठा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे के करीब 11:45 के करीब 2 ज़बरदस्त धमाके सुने गए। उन्होंने बताया कि धमाकों से लोगों में खौफ व हरास फैल गया क्योंकि शहर और वादे के दिगर हिस्सों में बिजली मुनक़ता हो गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ इलाकों में सायरन भी सुनाई दिए। इससे कबल सुबह सवेरे मुतअद्दिद धमाकों से शहर को हिला कर रख दिया। भारतीय फ़ौज की जानिब से जुमा की रात यहां कई मकामात पर पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने के चंद घंटे बाद हवाई अड्डे समेत अहम तनसीबात के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा समेत 5 अफराद पाकिस्तानी गोलाबारी में हलाक। जम्मू कश्मीर का एक सीनियर अहलकार इन 5 शहरियों में शामिल था जो राजौरी में हफ्ता की सुबह पाकिस्तान की तरफ से शदीद तोपखाने की फायरिंग के दौरान मारे गए, जबकि हिंदुस्तान ने रात भर हवाई हमलों के सिलसिला का जवाबी कार्रवाई जारी रखी। राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा हफ्ता की सुबह अपने घर पर पाकिस्तानी गोला गिरने के बाद शदीद ज़ख्मी हो गए। एक और शख्स जिसकी शनाख्त जाकिर हुसैन के नाम से हुई है, जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में रायपुर इलाका के खैरी में उनके घर पर गोला गिरने से हलाक और उसके अहल खाना ज़ख्मी हुए। खैरी जना के अशोक कुमार और उनके 3 रिश्तेदार भी गोलाबारी से ज़ख्मी हुए जब वो महफूज मुकाम पर जा रहे थे। अब है समय मोमेंट के SMS का। It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. खुश रहना बहुत आसान है लेकिन सादा रहना बहुत मुश्किल। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।